Good morning, everyone, and I welcome each one of you uh, to our today's session. That is exclusive session on the topic of diabetes and और आज बहुत सारी बातें हम लोग स्पेसिफिक डायबिटीज़ के ऊपर, हेल्थ के ऊपर बहुत सारी बातें हम लोग आज करने वाले हैं। और जो कमिंग 35-40 मिनट्स आपके होने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये 35-40 मिनट्स आपके होने वाले हैं। एंड आई प्रॉमिस यू दैट दीज 35-40 मिनट्स will really add a lot of value out there for you in terms of taking care of your own health and helping other people, right? So that you can help other people so that they can be healthy out there. तो आज के सेशन को कंडक्ट करने के लिए we are going to invite a ma'am, a personality like जिन्होंने thousands of लोगों को help किया है अपनी knowledge के through, thousands of लोगों को consult किया है। they have like she has helped thousands of people all across the country by lifestyle management के through, diet management के through और consultants और various way में health consultancy उन्होंने provide करी है। अगर मैं आपको मैम के बारे में बताऊँ, like she has done her masters in clinical nutritional and dietetics, और clinical nutrition और dietetics में मैम ने अपना मास्टर कंप्लीट करा है। and she has done her internship from PGI चंडीगढ़, राइट? PGI चंडीगढ़ से मैम ने अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करा है। एंड शी इज़ वर्किंग एज अ डाइटिशियन, एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ वेलनेस कंसल्टेंट। और आज लाइक वी आर प्रिविलेज एनफ दैट शी इज़ अलॉन्ग विद अस इन दिस इंस्टा लाइव सेशन, and with her knowledge, with her experience related to health, related to lifestyle management, related to diet management, we are going to learn lot number of things from her today. So I think so all of you will be very excited, yes or no, right? Correct. So now very soon I'm going to invite ma'am, so I'm going to introduce I'm going to invite her. So today in this session I'm going to invite Dr. Sheena K. Malhotra out there in today's session, so that we will have a very healthy discussion with her on the topic of health, on the topic of lifestyle. So I think so, ma'am is there with us. Hi, ma'am. How are you? Hi, I'm good. How about you? I'm really great, ma'am, and I think so. Our complete Insta family is very excited to get insights of health, insights of lifestyle management, and health management from you. I think so. They are very excited for all the tips, and I think so. We are able to see that out in the chat box out there. Uh, so. Mhm. So first of all, I would like to thank you for inviting me and expressing myself, and I will be very privileged to give my knowledge to you people regarding the diabetes. So सबसे पहले, so let's start with the session now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, ma'am, let's start with the session. तो मैम सबसे पहला टॉपिक जो मेरे माइंड में था, जो हमने कई बार देखा है कि we have seen that in this last few years, or I can say last 50 years, 60 years, that diseases have became like a household name, right? पहले किसी एक को कैंसर हुआ करता था, किसी एक को डायबिटीज हुआ करती थी फैमिली में, और किसी these diseases used to be with very selected people. But today what we are observing is ये हर किसी के घर में है। मतलब there are multiple patients in every family suffering from these kind of diseases, whether it is diabetes, whether it is cancer, whether it is hypertension. So, ma'am, what is your view about it? Like, why it is happening, and why it is coming up, ma'am? See, the thing is about the lifestyle. Basically, आजकल हर किसी का जो लाइफस्टाइल है वो इतना ज्यादा सेडेंटरी हो गया है, जिसके कारण हम लोग जो है हर चीज मशीनरी के ऊपर डिपेंडेंट है। बेसिकली वी आर डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी। ड्यू टू दिस थिंग ओनली वी आर नॉट एबल टू कैरी आवरसेल्फ, एंड क्या हो रहा है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है। पहले के टाइम जो एंशिएंट या हमारे जो इंसेस्टर्स थे, उनका जो डाइट थी वो हमारे कंपैरेटिव बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका अकॉर्डिंग फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा थी, जिसके कारण वो डिजीज फ्री थे, प्लस उनको कोई हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस नहीं होते थे। और अगर बात करी जाए डिजीजेस की, तो उस टाइम पे डिजीजेस लाइक कह लो कि डायबिटीज को अगर कंसिडर किया जाए तो इट वाज कंसिडर्ड एज अ राज रोग इन द एंशिएंट टाइम।
हाँ हाँ बिकॉज उस टाइम पे ये डिसीज जो है वो उन लोगों को होता था जो राजा महाराजा होते थे, बिकॉज उनका हाँ लाइफस्टाइल सिडेंट्री होता था। और आज के टाइम पे हर किसी का लाइफस्टाइल जो है वो सिडेंट्री हो रहा है, और हर कोई जो है मशीन पे हम्म ज्यादा डिपेंड हो रहा है, जिसके हम्म कारण फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है। और हमारी ईटिंग हैबिट्स, डेफिनेटली द ईटिंग हैबिट इज ऑल्सो द थिंग हम्म कि जो हमारे लाइफस्टाइल कर रही है, हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रही है, लिवर को इफेक्ट कर रही है, और बाकी डिसीजेस का कारण भी यही है बेसिकली। हम्म हाँ सो मैम, तो मैम ने हाँ यस। हाँ हाँ, तो मैम आपने बताया कि जैसे डायबिटीज एक समय पे राज रोग होता था, राइट, जो राजाओं को होता था, राइट। तो आज लोग राजा भले ही बने हो या बने ना हो, लेकिन राजाओं वाली बीमारी जरूर घर घर में आ चुकी है। एग्जैक्टली, लाइक वो अकेला डायबिटीज नहीं है, बाकी जितने भी मेटाबॉलिक डिजीजेस, लाइक आई कैन से कार्डियक डिसीजेस, हार्ट डिसीजेस, लिवर डिसीजेस, और ओबेसिटी। डेफिनेटली जितने भी डिसीजेस है वो ओबेसिटी के रिलेटेड ही है। वेट गेन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो जिसके कारण डायबिटीज हो रहा है, हार्ट डिसीजेस हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल जितने भी डिजीज का कारण है वो हमारा वेट गेन है, हमारा वेट जो कॉन्स्टेंटली गेन हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, और डेफिनेटली आई कैन से कि ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स। तो कहीं ना कहीं मैम ये सारी जितनी भी डिसीजेस के नाम हम जनरली सुनते हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, हमारा हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, अगर हम देखें तो शायद इनका जो रूट कॉज है वो सेम है, राइट। वो रूट कॉज हमारा लाइफस्टाइल और हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं। अच्छा मैम, डेफिनेटली, जैसे क्योंकि हमें पता है कि यही अभी चीजें ट्वेंटी जो फर्स्ट ऑफ है, जून आ रहा है। हाँ हाँ यही चीजें हमारे लाइफस्टाइल की जो हम लोग गलतियां कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में, हाँ वही हाँ चीजें हमारी बॉडी पे इफेक्ट कर रही हैं। आइदर वो इट इज अ लिवर और योर लंग्स और किडनीज, हाँ एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द लाइफस्टाइल। हम्म हाँ। अच्छा मैम, अब जैसे कि अभी हमारा 21 जून को योगा डे आ रहा है, तो हमने जैसे देखा है कि इंडिया जो है योगा कैपिटल है, लेकिन अब इंडिया योगा कैपिटल होने के साथ साथ डायबिटीज कैपिटल भी बन चुका है पूरे वर्ल्ड का, कैपिटल राइट। भी है, यस तो एग्जैक्टली, बिकॉज मतलब ये इंडिया में डायबिटीज, इस टाइम, हाँ, हम्म, यस मैम, इंडिया में इस टाइम सबसे ज्यादा डायबिटीज इंडिया में ही है, बिकॉज हम्म, लाइफस्टाइल इंडिया में बहुत ज्यादा सिडेंट्री हो गया है। हाँ मैम, नोबडी इज लाइक हैप्पी टू वर्क आउट। हर किसी को ये करना एक बहुत मुश्किल लग रहा है, वर्कआउट करना। आइदर इट इज हाँ, सिंपली अ वॉक, वो भी कोई हम्म, करने को तैयार नहीं है प्रॉपरली, या डाइट तो बहुत दूर की बात है। इवन एनीबडी इज नॉट रेडी टू डू सम काइंड ऑफ वर्कआउट। हम्म, बेसिकली उसी हम्म, उन्हीं चीजों के साथ रिलेटेड है यस मैम, हर चीज की। हमारा जो डिसीज है वो इसी कारण ही इतना हाइप हो रहा है। हम्म, यस मैम। और आज के समय में तो कई सारे ऐप्स हैं, चाहे जोमेटो हो चाहे स्विगी हो, ये सारे ऐप हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हमारे मूवमेंट को। और जितने ज्यादा ऐप्स आ रहे हैं उतने ज्यादा हमारी मूवमेंट, जैसे आपने बताया कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो ग्रो करती जा रही है, और जिसकी वजह से बहुत सारी लाइफस्टाइल जनरेटेड डिसीजेस निकल के आ रही हैं। तो मैम जो हमारे आज व्यूअर्स हैं, थोड़ा सा मैम अगर हमारे व्यूअर्स जान पाए कि डायबिटीज क्या होता है, क्योंकि जनरली कई सारे हमारे व्यूअर्स इसमें से यंग भी हैं, मतलब दे आर इनटू वेरी यंग एज, मतलब अपनी बहुत यंग एज में हैं। तो मैम थोड़ा सा हम जान पाए कि डायबिटीज क्या है, इसकी क्या टाइप्स हैं, थोड़ा सा एक अगर किसी की डायबिटीज की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल पाए, जिससे कि कैन पीपल यू शुड हियर गेट मी? एजुकेटेड अबाउट इट, लाइक व्हाट इज डायबिटीज, हाउ इट गेट स्टार्टेड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इट। यस मैम। सी, फर्स्ट ऑफ हम्म ऑल, अगर डायबिटीज की डेफिनेशन की बात करी जाए, तो जो बॉडी में हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, दैट मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण बॉडी की एबिलिटी जो है वो ग्लूकोज को यूज करने की खत्म हो जाती है, या इनएबिलिटी उसकी कम हो जाती है, जिसके कारण जो हमारी बॉडी का एक हम्म पार्ट, पैनक्रियास, जो हम्म, स्टमक के साथ रिलेटेड है, वो इंसुलिन या तो प्रोड्यूस नहीं कर पाता, या अगर करता है तो बहुत कम क्वांटिटी में करता है, जिसके कारण हाँ, जो कार्ब्स है, वो शुगर्स है, वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हो पा रही है। सो दिस ओके, इज द ओनली रीजन ऑफ द डायबिटीज। एंड हम्म, डायबिटीज जो है बेसिकली टू टाइप्स का है। अगर हाँ हाँ देखा जाए तो टू टाइप्स का डायबिटीज है। वन इज अ डायबिटीज वन टाइप, दैट इज हाँ, कॉल्ड द जुवेनाइल डायबिटीज, जो ओके, मोस्टली बच्चों को होता है, एंड हाँ हाँ यंगस्टर्स को भी होता है, बट बच्चों में ज्यादा होता है। इट्स अ काइंड ऑफ डायबिटीज जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, जिसमें हाँ हाँ, इंसुलिन जो है इंजेक्ट करना पड़ता है। And it's ओके, like very complicated situation for the person who is insulin dependent, because उसको हर हाँ, टाइम इंसुलिन लेना पड़ता है। समटाइम्स उसको अच्छा, अर्ली मॉर्निंग लेना पड़ता है, एम्प्टी स्टमक लेना पड़ता है, या रैपिड लेना पड़ता है। आफ्टर हम्म, बिफोर हैविंग द मील्स ही और शी हैज टू टेक द इंसुलिन। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ थिंग, because he or she has to inject himself,
एंड हाँ हाँ सेकेंडली टाइप 2 डायबिटीज इज ओनली द रीजन, लाइक आई कैन से जो इसका कॉज है दैट इज द लाइफ स्टाइल, जिसमें ओके इंसुलिन सेंसिटिविटी या इंसुलिन रेजिस्टेंट है बेसिकली। इट्स अ काइंड ऑफ जिसमें इंसुलिन बन रहा है बट पैनक्रियाज उतना इंसुलिन नहीं बना रही जितना बॉडी को चाहिए फूड को एनर्जी, बॉडी को एनर्जी देने के लिए। तो जिसके हाँ हाँ वीकनेस बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाती है और समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वेट हम्म, कॉन्स्टेंटली लूज होना स्टार्ट हो जाता है या बॉडी बहुत ज्यादा टायर्ड फिटीग और ऐसी हम्म, कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाती है। हाँ हाँ। तो इसका मतलब मैम जनरली जो मासेस को जो डायबिटीज से वो सफर करते हैं, जनरल जनरल पॉपुलेशन जो डायबिटीज से सफर करती है, वो टाइप 2 डायबिटीज है। यस, ओके। तो टाइप कहीं ना 2 कहीं एंड ऑल्सो मेरे हम्म, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम्म, टाइप 2 डायबिटीज तो चलो जो है ही है, हाँ बट हाँ उसके अलावा लोग प्री डायबिटिक भी बहुत है अच्छा जिनका आई कैन से कि HbA1c जो है मोर देन 6 है। तो हाँ इट्स अ हाँ काइंड ऑफ और एट द बॉर्डर लाइन, तो जिसके हाँ हाँ कारण जो है वो प्री डायबिटिक सिचुएशन में है और उनको भी बहुत सी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो रही है एंड दे आर एट द बॉर्डर लाइन। तो जो ओके वो भी आई कैन से दे आर फेसिंग दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स ओनली। ओके। तो मैम जो कई लोग ऐसे होंगे जो प्री डायबिटिक होते होंगे और उनको बहुत लंबे समय तक पता ही नहीं चलता होगा कि वो प्री डायबिटिक हैं, और वो प्रॉब्लम शायद उनकी ग्रो करती रहती होगी। हाँ, वो बेसिकली क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे अगर देखा जाए तो हम लोग हाँ टेस्ट नहीं करवाते हैं, हाँ बट हाँ कई हाँ बार सिम्टम्स कि जो लाइक आई कैन से कि किसी को बहुत ज्यादा एक्सेस थर्स्ट, लाइक एवरी टाइम ही इज फील ही और शी इज फीलिंग कि बहुत ज्यादा वाटर की नीड है, थर्स्टी है, बहुत हम्म, ज्यादा भूख एक्सेस में लग रही है या यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो रही है और वीकनेस आई कैन से कि टायर्डनेस बहुत ज्यादा फील होती है। तो दीज ऑल सिम्टम्स कैन बी द साइन ऑफ योर लाइक प्री डायबिटिक सिचुएशन और द डायबिटिक सिचुएशन आई कैन से। हम्म। तो कहीं ना कहीं अगर हमें ऐसे कुछ सिम्टम दिख रहे हैं तो हमें अपनी, क्योंकि जनरली डायबिटीज जब एक इंसान को हो जाता है उसके बाद तो वो रेगुलर ध्यान रखता है, चेकअप्स करवाता है, उसको मॉनिटर करता रहता है। लेकिन जनरली हम्म। उस फर्स्ट टाइम डायबिटीज होने से पहले कोई भी इंसान उसको उतना रेगुलरली मॉनिटर नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं जो सिम्टम्स आपने बताए, अगर वो सिम्टम्स किसी को भी दिख रहे हैं तो शायद दे शुड गो एंड दे शुड हैव अ चेकअप। एक एक यस। डायबिटीज का चेकअप उनको करवाना चाहिए, जिससे कि उनको क्लियर हो कि कहीं वो फ्री डायबिटिक तो नहीं है। अच्छा मैम, यस मैंने एग्जैक्टली। अपनी, हाँ मैम, मैं अपनी फैमिली में मैंने देखा है कि कई लोग डायबिटिक पेशेंट मेरी फैमिली में भी थे, मैंने ऑब्जर्व भी किया है। और मैंने जनरली ये देखा है कि वो मेटामॉर्फिन टैबलेट्स वो पहले रेगुलरली उन्होंने कंज्यूम करा, फिर धीरे से डायबिटीज जब उनकी ग्रो करी तो फिर वो इंसुलिन इंजेक्शंस पे भी गए, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और हेल्थ के उनकी बॉडी में आने शुरू हो गए। तो डायबिटीज, हम्म। मैं आपको जानना चाहता हूँ कि कैसे डायबिटीज और भी कॉम्प्लिकेशंस, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डायबिटीज जनरेट करता है। और हाँ, यस मैम, सी अगर यस। कॉम्प्लिकेशंस की बात करी जाए, बहुत से हाँ हाँ लोग लाइक एज पर माई एक्सपीरियंस बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो डायबिटिक हैं दे आर टेकिंग द पिल्स बट दे आर नॉट टेकिंग ऑफ केयर ऑफ देयर हेल्थ। ओके। मतलब वो मेडिसिन ले रहे हैं बट दे आर हाँ नॉट हाँ टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ और डाइट। ठीक है, हाँ हाँ जिसके कारण सिचुएशन कई बार बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाती है और बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाती है और उसके कारण जो प्रॉब्लम्स हैं, आई विजन, आई साइट वीक होना स्टार्ट हो जाती है, दैट मीन्स आई कैन हाँ से डायबिटिक रेटिनोपैथी और आई हाँ कैन से नेफ्रोपैथी एंड हाँ न्यूरोपैथी, नर्व्स में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली डायबिटिक फुट, फुट में जो है प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, हाँ फीट हाँ जो है स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है या कईयों हम्म, का वुंड्स बहुत ज्यादा हील नहीं हो पाते, जल्दी वुंड्स हाँ नहीं हाँ हील हो पाते, कोई जख्म हम्म, हो जाता है वो जल्दी हील नहीं हो पाता। तो हाँ ऐसी हाँ बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस, बाकी रेस्ट ऑल आई कैन से किडनी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है अगर आप लोग डायबिटिक के, अगर आप डायबिटिक हो और उस चीज के लिए आप हाँ हाँ कंसर्न नहीं हो, तो अपनी हाँ डाइट को मैनेज नहीं कर रहे हो। और हाँ डेफिनेटली हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को होती है जो डायबिटिक होते हैं। हाँ हाँ हाँ। और मैम हमने कोविड पीरियड में भी ऑब्जर्व किया कि कोविड ने भी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो क्रिएट किया, मतलब कोविड में बहुत सारे लोग जो बहुत ही क्रूशियल, एकदम क्रिटिकल स्टेज में गए और कई लोगों ने अपनी लाइफ को भी लूज किया। आई थिंक सो उसमें एक बहुत मेजर परसेंटेज उन लोगों का था जो कहीं ना कहीं डायबिटिक डायबिटिक थे। हम्म। यस मैम। बिकॉज द थिंग इज दैट क्योंकि हमारी बॉडी जो न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही एंड हाँ हाँ उसके साथ क्या हो रहा है कि इम्यूनिटी वीक हो रही है। हाँ, इम्यूनिटी भी इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती बेसिकली हर चीज जो है वो इम्यूनिटी के साथ रिलेटेड एंड है। हमारी लाइक न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के साथ रिलेटेड है। तो हम्म अगर आपकी बॉडी उन चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही या मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही तो यू आर हम्म नॉट गोइंग टू सर्वाइव।
आइदर इट्स लाइक अ काइंड ऑफ कोविड या कोई भी सिचुएशन है, कोई भी डिजीज है, अगर आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी नहीं है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की, उसको यूटिलाइज करने की, आपकी इम्यूनिटी नहीं है उस लेवल की, तो यू आर हम्म नॉट एबल टू सर्वाइव। हम्म। अच्छा मैम, अब जैसे मैंने हमने डिस्कस किया कि इसके कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं, और वो कॉम्प्लिकेशंस एकदम एक्सट्रीम लेवल तक भी चले जाते हैं अगर उनको प्रॉपर्ली मॉनिटर नहीं किया जाए। तो जैसे हम्म। मेटामॉर्फिन टैबलेट चलती हैं, फिर इंसुलिन से इंजेक्शन चलते हैं। तो मैम अब क्या तरीका है, मतलब क्या क्या वाकई में कोई इंसान अगर एक बार डायबिटिक हो जाता है तो क्या वो अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकता है? मतलब इंसुलिन से वापस मेडिसिन से, या मेडिसिन को रिड्यूस कर सकता है? क्या इसके सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल हैं? और अगर वो हैं तो वो मैम क्या सॉल्यूशंस हैं? यस मैम। सी, टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस, सबसे हाँ पहले मैंने बात करी लाइफस्टाइल की। एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन आई टॉक्ड अबाउट द हाँ लाइफस्टाइल। तो डेफिनेटली अगर आपका लाइफस्टाइल सही होगा तो यू हाँ कैन like be able to reverse your diabetes and prevent the things. हाँ Basically, हाँ it's all dependent on the lifestyle. First हाँ of हाँ। all, you have to be very concerned with the things regarding the lifestyle. यस आपको मैम। यू हैव टू मूव योर बॉडी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द डाइट एज वेल। अब डाइट यस की मैम। बात करी जाए तो हाँ हाँ देयर आर हाँ मेनी थिंग्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड। हाँ। नॉर्मली लेमैन लैंग्वेज में डायबिटिक लोगों में बहुत मिथ्स है। नॉर्मली जो है जो नॉर्मल एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम एक कन्वर्सेशन चल रही है दो पर्सन्स की, तो उसमें से हाँ हमेशा हमें ये सुनने को मिलता है कि चीनी मत खाओ, उसके साथ हाँ हाँ डायबिटीज हो जाएगा। तो हाँ हाँ। इट्स टोटली अ रॉन्ग थिंग। बेसिकली हमें ओवरऑल अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करना है, अपनी डाइट पे वर्क करना है। तो वी हैव टू फोकस ऑन द कार्ब कंटेंट। अब कार्ब्स ओके। भी जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज अ हाँ। सिंपल कार्ब्स एंड अनदर वन इज अ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। यस मैम। अगर कार्ब की बात करी जाए, वी हैव टू कंज्यूम द कार्ब्स, बट वी हैव हाँ। टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द कार्ब्स। ओके। हाँ। क्वालिटी की बात करी जाए, कार्ब्स जैसे एक सिंपल है, सिंपल काइंड ऑफ कार्ब्स जो होते हैं उसका जो जीआई इंडेक्स है, दैट इज द हाँ ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ द फूड। हाँ ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, बिकॉज हाँ हाँ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज अ काइंड ऑफ नंबर ऑफ द कार्ब्स जो इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स कितने बढ़ेंगे। तो हम्म, हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग, क्वालिटी ऑफ फूड के अकॉर्डिंग कार्ब्स लेने पड़ते हैं। हाँ सिंपल हाँ कार्ब्स जो है, लाइक कैन से ब्रेड्स, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट हाँ। राइस, तो इन सब की बात करी जाए, इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है दिस इज लाइक मोर देन 55। तो ओके। 55, मोर देन 55 इज नॉट रिकमेंडेबल फॉर द डायबिटिक पेशेंट। यस मैम। हाँ Consider हाँ। the diabetic index and plus the quality of carbs. So I would suggest you to go for the complex carbs, जिसको अच्छा। जो लाइक एनर्जी भी ज्यादा टाइम तक आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करके रखता है, एनर्जी गिविंग फूड है। प्लस आपकी जो आई कैन से इट विल गिव यू द गुड अमाउंट ऑफ फाइबर एज वेल, एंड हम्म, हेल्प करेगा आपके डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए। सो आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स, लाइक यू कैन गो फॉर द होल ग्रेन्स और मिलेट्स, दैट इज गुड हम्म, एग्जांपल। एंड आई कैन से कि बकव्हीट इज अ वेरी गुड सोर्स। अगर आप हाँ डायबिटिक पेशेंट हो तो यू कैन गो फॉर कुट्टू का आटा, यू कैन इंक्लूड कुट्टू का आटा इन योर डाइट, और मिलेट्स काइंड ऑफ हाँ थिंग। आई कैन से हाँ हाँ। फॉक्सटेल, रागी you can include in your diet, or you can include oats, barley. These all things are very helpful for the same. हम्म हम्म हम्म। तो And मैम secondly, हम्म हम्म, secondly, जो प्रोटीन है, प्रोटीन इज हाँ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम हाँ लोग हाँ जब भी इंडियंस, स्पेशली इंडियंस की बात करी हाँ जाए, तो इंडियंस जो अपनी प्लेट डिजाइन करते हैं, ये जो प्लेट अपनी मील में लेते हैं प्लेट, तो हाँ हाँ उसमें क्या करते हैं कि रोटी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, सब्जी की कम होती है, सैलेड की कम होती है, या प्रोटीन की कम होती है। तो दैट इज हाँ वेरी हाँ रॉन्ग थिंग। हाँ अगर हाँ। बात करी जाए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की, ईटिंग हैबिट को कंट्रोल करने की, माइंडफुल ईटिंग की, तो वी हम्म, हैव टू टेक कार्ब इन लेस क्वांटिटी एंड वेजिटेबल्स प्लस प्रोटीन इन मोर क्वांटिटी, तभी ओके। जाके वो एक बैलेंस मील बनेगी। तो प्रोटीन ओके। भी एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप अकेली दाल ले रहे हो हाँ तो हाँ दैट इज नॉट द कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो वी हैव हाँ टू हाँ। फोकस कि आपका प्रोटीन उस अकॉर्डिंग बने कि वो एक कंप्लीट प्रोटीन बने, बिकॉज प्लांट अच्छा। बेस्ड प्रोटीन जो होता है दैट इज नॉट द कंप्लीट प्रोटीन। We have अच्छा। to combine two kind of proteins to make the complete protein. So either you हाँ can take the combination of khichdi or dal and rice.
हाँ हाँ I can say that is the best combination for the vegetarian person for diabetic, I can say. Or हाँ हाँ non-vegetarian, I can say कि egg whites you can take. हाँ That is हाँ very good source. Or lean proteins, lean meats. हाँ 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 And यस rest all fiber is much important. You have to take 40 grams of fiber every day. Either आप oats include करो, salad ज़्यादा से ज़्यादा include करो, vegetables, soups you have to include in your diet on the daily basis. So these all things can really help you. And vegetable juices definitely. ओके। तो मैम आपने कहीं ना कहीं सजेस्ट करा कि हमारी जो डाइट है हम उसमें सिंपल कार्ब्स की जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना शुरू करें। कई बार हम लोग ऐसी Yes. डाइट लेते हैं कि जिसमें हमें सिंपल कार्ब्स मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक डायबिटिक पेशेंट के लिए तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और दूसरा आपने Yes. सजेस्ट करा कि जो हम अपनी मील है उसको प्रॉपर्ली प्लान करें। मैंने देखा है कि इंडियन, जैसा आप बिल्कुल बता रहे थे, मैंने मैंने सिमिलरली ऑब्जर्व किया है कि एक इंसान 3 चपाती अपनी प्लेट में रखता है और जस्ट एक बाउल ऑफ वेजिटेबल होती है और उसके साथ 4 चपाती कंज्यूम हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक Hmm. प्रॉपर प्लान मील होनी चाहिए जहाँ पे कार्ब्स, प्रोटीन, सैलेड्स, फाइबर्स, इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो। इसके साथ मैम, जैसे आपने फाइबर के बारे में बातचीत की, तो क्या हम जान सकते हैं कि फाइबर का जनरली क्या रोल होता है और फाइबर क्या रोल प्ले करता है? अ, थोड़ा सा। See, हाँ। talking about the fiber, फाइबर भी दो तरीके के होते हैं, एक soluble फाइबर ओके। होता है, soluble फाइबर होता है। तो बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन द soluble एंड इन both of the fibers, I can say. हाँ तो इन हाँ हाँ। soluble fibers like vegetables and fruits we have to include. बेसिकली हम्म, जितना आपका फाइबर डाइट में ज्यादा इंक्लूडेड रहेगा उतना ही आपका स्टमक जो है वो अच्छे से क्लियर होगा, प्लस आपकी बॉडी एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। और हाँ हाँ। लाइक एज दे आर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, जितने भी फाइबर रिच फूड है दे आर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, so they ओके। will really अच्छा। help you for the same. हाँ हाँ। ओके। तो कहीं ना कहीं फाइबर भी 2 टाइप के होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अच्छा मैम, Yes. एक जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आज की डेट में लोगों की लाइफस्टाइल जैसे इतनी बिजी हो गई है, वर्क रूटीन इतने टाइट्स हैं कि लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हरी बरी में करते हैं और लंच भी बड़ा हरी बरी में होता है, और टी जो है वो हमारी कंट्री का नेशनल ड्रिंक बन चुका है। मतलब एक टी तो Yes. हमारा नेशनल ड्रिंक है जो कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में बहुत ही एसिडिक नेचर प्ले करता है। तो मैम ऐसा एक डिसिप्लिन तो एक फैक्टर है जिससे कि हम अपनी डाइट को मेंटेन कर पाए। तो मैम जैसे आपको पता है कि आप जानते हैं कि विंजेरा कहीं ना कहीं फूड सप्लीमेंट्स पे वर्क कर रहा है, क्योंकि ये अक्सर मैम, एम आई ऑडिबल मैम? ओके। Okay, I think so. Ma'am will join back us very soon. I just want to have a message in the chat box. मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि am I audible? क्या मैं आप सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? राइट। एक सेकेंड, मैं मैम को दोबारा ऐड करता हूँ। राइट। अच्छा। तो अभी तक के जो हमारे डिस्कशंस हुए, वो अभी तक के डिस्कशंस हमारे ये हुए कि कहीं ना कहीं, यस मैम, लाइक मैम इज देयर। तो मैम मैं कहीं ना कहीं ये बातचीत कर रहा था कि जनरली हमारे जो लोग हैं, जो हम ऑब्जर्व करें, लाइफस्टाइल इतना टिपिकल हो चुका है, इतना इतना फास्ट हो चुकी है आज आज के समय में लोगों की जिंदगी, कि लोग सुबह रश करना है ऑफिस की तरफ और फिर लंच में बस कुछ भी मिल जाए और किसी तरीके से मैनेज हो जाए। और आपको पता है सारे कॉर्पोरेट्स में सब जगह पर बस वो कैंटीन्स होती हैं, और चाय तो हमारा एक तरीके से नेशनल ड्रिंक है कंट्री का। और जब भी हमें कोई मील को रिप्लेस करना है तो इंडिया में मील चाय से रिप्लेस हो जाती है। तो मैम, क्या, Yes. जैसे हम विंजेरा में हम लोग फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो मैं आपका व्यू जानना चाहता था कि फूड सप्लीमेंट्स एक अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छी डाइट को मेंटेन करने में क्या रोल प्ले कर सकते हैं मैम आपके अकॉर्डिंग? See, first of all, अगर फूड सप्लीमेंट्स की बात करी जाए तो इट्स गुड थिंग. आई वुड हाँ नॉट से कि इट्स बैड थिंग, बिकॉज एज लाइक हर किसी का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बिजी है. हर हाँ किसी हाँ के पास इतना टाइम नहीं है कि वो खाना खा सके या अपनी मील्स को कंप्लीट कर सके. हाँ और हाँ। ऐसा भी डेफिनेटली है कि हमारा जो फूड है दैट इज एडल्ट्रेटेड. यस बहुत मैम। सी उसमें चीजें हैं जो एडल्ट्रेटेड है. उसकी जो एक्स्ट्रा आई कैन से कि बहुत सी चीजें उसमें लैगिंग हैं. तो वो चीजें कहीं ना कहीं हम अपने सप्लीमेंटेशन से पूरे कर सकते हैं. ओके। द ओके। थिंग्स विच आर मिसिंग. और बहुत सी चीजों की रिकमेंडेड डोज जो है वो हम अपनी डेली डाइट से नहीं पूरी कर पाते.
तो sometimes we need to take the supplements as well. हम्म। ओके मैम, कहीं ना कहीं जो हमारी आरडी होती है, रिक्वायर्ड डेली वैल्यू जो हमारे को चाहिए होता है, रिक्वायर्ड डोसेस का हर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का हमें चाहिए होता है, जैसे कार्ब्स, फाइबर्स और ये हमारे प्रोटीन, ये तो हमारे मेन मेजर न्यूट्रिएंट्स हो गए। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन हो गए, हम्म, मिनरल्स हो गए, तो ये माइक्रो हम्म। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में मैम आपके अकॉर्डिंग क्या रोल प्ले करते हैं? अ, जो सी हमारे माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स का सबसे बड़ा रोल जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने का है, कि बॉडी ओके में मैम। एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और आई कैन से कि लाइक विटामिन ए, डी, ई के, these micronutrients are really helpful and they are all are the fat soluble vitamins and they are हाँ much needed for the body. और हाँ हाँ। उसके साथ लाइक आई कैन से कि आपकी लिवर हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छे से मेंटेन हो सकती है। आपके जैसे आई कैन से कि ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा स्पाइक करते हैं, तो दैट विल हेल्प यू फॉर द सेम अगर आप रेगुलर बेसिस पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डोज ले रहे हो तो। एंड ऑल्सो द बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स, हाँ हाँ हाँ, जनरली वेस्ट डाइट में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैंने मैंने जो स्टडी करा है क्योंकि कि बी बी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स जो विटामिन है में वो इंडियन। बेसिकली यस मैम। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स जो है वो बेसिकली आपको नॉन वेज फूड से मिलते हैं। एंड द पीपल हु आर लाइक आई कैन से नॉन वेजिटेरियंस और सॉरी वेजिटेरियंस और वीगन्स, दे आर नॉट एबल टू लाइक टेक बी कॉम्प्लेक्स vitamins from the vegetarian food properly. So it's like हम्म kind of very difficult situation for the person कि जिसको नर्व्स की प्रॉब्लम भी है, डायबिटिक भी है और बहुत सी ऐसी सिचुएशन है और उसका बी कॉम्प्लेक्स फूड से नहीं पूरा हो रहा, सो ही और शी कैन टेक द सप्लीमेंट फॉर द सेम। एंड इवन द केस ऑफ फैट soluble vitamins as well, बिकॉज वो भी हमारे हम्म पूरे नहीं हो पाते प्रॉपरली। हम्म। हाँ, ज्यादातर इंडियन इंडियन जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं उनमें विटामिन डेफिशिएंसी हमेशा रहती है, राइट? कि यस, अगर कभी भी चेकअप कराने जाएं तो कोई ना कोई विटामिन बी और विटामिन डी, ये तो विटामिन तो मैम ऐसे हैं जिनकी जिनकी कमी हमेशा आपकी रिपोर्ट्स में, मतलब हम लोगों की रिपोर्ट्स में निकल कर आती है। तो मैम यस, जैसे आज विंजेरा सीबकथॉर्न के ऊपर वर्क कर रहा है और कई सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स के ऊपर वर्क कर रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहता था कि आपके अकॉर्डिंग सीबकथॉर्न जो है वो क्या रोल प्ले कर सकता है, मतलब डायबिटीज रिवर्सल में या इम्यूनिटी को अच्छा करने में या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का को बॉडी में कंप्लीट करने में, मतलब सीबकथॉर्न क्या रोल प्ले कर सकता है मैम आपके अकॉर्डिंग? see, Seabuckthorn is a kind of, first of all, I would like to tell you about the Seabuckthorn. Basically, हाँ it's a kind of plant product और ये बहुत rarely available है। As per my studies और as per the research, it's available in the Himalayas और लद्दाख। तो ये हाँ हाँ बहुत रेयरली अवेलेबल है और इसकी जो डिमांड है दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, हाँ जस्ट हाँ बिकॉज लाइक इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर द डिजीज मैनेजमेंट। और वो हाँ डिजीज आइदर इट इज अ डायबिटिक पेशेंट, आइदर इट इज फॉर द डायबिटिक पेशेंट और फॉर द रीनल पेशेंट, आई कैन से फॉर द किडनी पेशेंट एंड हाँ बेस्ट हाँ फॉर द स्किन एज वेल। बिकॉज हाँ इसमें जो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि फैट soluble vitamins की, तो सी हाँ हाँ बकथ्रॉन इज like very rich source of vitamin A, D, E and K. So this हम्म is the like complete thing for I can say for completing our daily requirements of the nutrients, हम्म micronutrients. And as हम्म well it is rich in flavonoids and antioxidants that is good for anti-aging and for the skin as well. हम्म हम्म हम्म। राइट, तो कहीं ना कहीं मैं आपके अकॉर्डिंग जो इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन अवेलेबल हैं प्लस इसमें ओमेगाज अवेलेबल हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं और जिससे कि कहीं ना कहीं डायबिटीज रिवर्सल में एक अच्छा रोल, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी की Yes, वजह से डिसीजेस मतलब वेरियस कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो रहे हैं, उस कॉम्प्लिकेशन जैसे आप बता रहे थे कि किडनी में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, जो जनरली किडनी के जितने भी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो जनरली किडनी की तरफ होते हैं और किडनी की अच्छी हेल्थ में सीबकथॉर्न एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। यस मैम। yes, exactly. बिकॉज बहुत से लोग जो डायबिटिक होते हैं जिनकी डायबिटिक बहुत स्वेरिटी में चली जाती है, तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है रीनल रिलेटेड, किडनीज की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इफ ही और शी इज टेकिंग Seabuckthorn in any form, तो इट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर द सेम, हाँ कि हाँ वो आपकी किडनी की फंक्शनिंग को भी मेंटेन करके रखता है। प्लस आई कैन से कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंट पेशेंट्स हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज है,
तो ब्लड शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करके रखेगा। जिनका ब्लड शुगर लेवल कांस्टेंट लाइक रेगुलर बेसिस पे बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो इट विल हेल्प यू फॉर द सेम एज वेल। प्लस आई कैन से कि आपकी अगर स्किन प्रॉब्लम्स है हाँ हाँ एंड इफ यू वांट अ गुड कोलेजन फॉर योर हेयर, सप्लीमेंट फॉर द सेम। हाँ हाँ। यस मैम, मैम आई थिंक सो एक नेटवर्क इशू था। तो मैम आप कोलेजन के बारे में बता रहे थे कि हमारी स्किन और कोलेजन और हेयर इनमें भी एक अच्छा रोल ये प्ले करता है। एग्जैक्टली। एंड कोलेजन जो है उसका रोल हमारी बोन्स के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है, सो इट कैन बी हाँ। हेल्पफुल फॉर योर बोन्स एज वेल। ओके। ओके मैम, तो मैम वी आर वर्किंग अपॉन विंजेरा कोलेजन ऑल्सो, और मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा बहुत जल्दी आप विंजेरा का जो कोलेजन पेप्टाइड है, राइट, आप उसके रिव्यूज बहुत जल्दी हमें प्रोवाइड करें। एंड अच्छा मैम, हमारे आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं और बहुत सारे ऐसे हर्ब्स अवेलेबल हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीजेस को क्योर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और आयुर्वेदा तो हमारी कंट्री का खुद का रहा है। हाँ, पिछले कुछ सालों में उसने वो ऑडियंस और वो स्पेस प्रोवाइड उसको नहीं मिल पाया है जो जनरली आयुर्वेदा को मिलना चाहिए था। तो मैम आपके अकॉर्डिंग आयुर्वेदा में जो हर्ब्स अवेलेबल हैं उसमें से कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं जो कहीं ना कहीं डायबिटीज के रिवर्सल में एक अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं और उसको कंट्रोल करने में एक अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं? See, as per my experience and as per my knowledge, I हम्म। would suggest you to go for the tulsi because it's a ओके। kind of best thing for हाँ हाँ diabetes and as well as for overall health. हाँ Because मतलब हर कोई ये एक ऐसा आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है या हाँ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हाँ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है या एक गॉड गिफ्टेड प्रोडक्ट है जो हाँ नेचर ने हमें दिया है। एंड इट्स अ मिरेकल काइंड ऑफ थिंग जो हर डिसीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। सिर्फ ये नहीं हाँ है, हाँ even for the हाँ lung, for the respiratory system, I can say हाँ हाँ for the heart health, it's very good. And हाँ हाँ as well as for the diabetes, because जो तुलसी होती है, बेसिकली तुलसी यस मैम। की भी 5 तरीके की तुलसी होती है। वन इज अ राम हाँ तुलसी, श्याम तुलसी, श्वेत तुलसी, हाँ हाँ नींबू तुलसी हाँ एंड वन हाँ तुलसी। सो दीज ऑल हाँ काइंड ऑफ तुलसी इज वेरी हेल्पफुल। तो अगर बात हाँ करी जाए डायबिटीज की या डिजीज मैनेजमेंट की, तो हाँ। मतलब हम इसकी कॉम्बिनेशन में या 5 तुलसी का कॉम्बिनेशन तो जरूर लेना चाहिए। वी शुड गो फॉर द सेम। ओके। ओके। तो कहीं ना कहीं तुलसी आपके अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, सिर्फ डायबिटीज में नहीं, हमारी ओवरऑल हेल्थ में। और जैसे आपने बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में और लंग्स को अच्छा रखने में तुलसी हमारा बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। अच्छा मैम, यस जैसे कि एग्जैक्टली। डायबिटीज में मैंने अपनी फैमिली में देखा है कई सारे लोग करेला जूस लेते हैं और करेला जूस वो लेते हैं। और कई बार ये माना भी गया है कि करेला जो है वो डायबिटीज में एक अच्छा रोल प्ले करता है। एक्चुअली उसके अंदर शायद कोई इंसुलिन के सिमिलर कंपाउंड्स होते हैं, प्री इंसुलिन जिसको बोला जाता है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो आज की बिजी लाइफस्टाइल में नहीं ले पाते हैं करेला, और या फिर उनको टेस्ट मैच नहीं करता है। तो इसके क्या सॉल्यूशंस मैम हमारे पास अवेलेबल हैं? हम इसको कैसे हम इसको ला सकते हैं? राइट। और कई बार जैसे जामुन बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन जामुन हर सीजन में मिलता नहीं है, लोग उसको रेगुलरली कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा हम क्या करें मैम कि लोगों को ये चीजें मिलनी शुरू हो जाएं, जिससे कि इतनी सारी अलग अलग हर्ब्स नहीं ढूंढनी पड़े? हाँ। राइट। कैन यस यू मैम। हेयर मी? यस मैम, यस मैम, यू आर ऑडिबल। So, talking about the करेला एंड जामुन, हाँ सो हम इसको एक प्रिजर्व जूस की फॉर्म में ले सकते हैं, ये एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में। अगर ये एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में मिल रहा है, करेला एक ऐसी चीज है जो हर किसी की लाइकिंग में नहीं है, हर कोई पसंद नहीं करता, और हर किसी के पास इतना टाइम भी स्पेसिफिकली नहीं है कि वो करेला निकाले। तो ही और शी कैन गो फॉर द एक्सट्रैक्ट फॉर द सेम ओके। extract तो or मैम, in the juice form, you can say. ओके, But it's, अगर I can say it's good for the health. If you are taking Karela juice or जामुन on the regular basis, और I can say कि किसी भी फॉर्म में ले रहे हो, तो वो आपकी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा इफेक्टफुल है। अच्छा, ओके मैम। तो मैम कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन है वो अगर उसको अपनी लाइफस्टाइल में रेगुलरली इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ रीजन, तो कहीं ना कहीं वो उसको एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, राइट?
जिससे कि Yes, वो लाइक it's लाइक not इट stored कैन। in any kind of juice. राइट, इन 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 टर्म्स ऑफ जूस। अच्छा मैम, एक छोटा सा मैं पॉइंट आपसे और जानना चाहता था कि जैसे ब्लैक राइस के ऊपर हमने थोड़ा सा स्टडी करा, और ब्लैक राइस के ऊपर भी हमने जाना है कि इसका जीआई काफी कम होता है, राइट? इसका जीआई कम है काफी नॉर्मल राइस के कंपैरिजन में, और इवन व्हीट से भी कम है, और ब्राउन राइस से भी इसका जीआई कम है। तो मैम आपके आपके पर्सनली आपका क्या व्यू है ब्लैक राइस को लेकर? एक बार मैं आपसे जानना चाहता था मैम। हम्म। सी, हम्म। जैसे मैंने आप की जो हम्म। राइस ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जब बात हो रही थी, तो हाँ। नॉर्मली जो राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है दैट इज 50। आइदर इट्स अ ब्राउन राइस, व्हाइट राइस और बासमती राइस, एनी राइस। तो ग्लाइसेमिक हाँ। इंडेक्स जो राइस का होता है, एंड हाँ। ब्लैक राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज लेस देन 50। आई कैन से इट्स अराउंड 45। सो हाँ। दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द डायबिटिक पेशेंट कि ब्लैक हाँ। राइस कंज्यूम अगर वो कर रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड थिंग। प्लस हम्म। इंसुलिन रेजिस्टेंट पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड हम्म। फाइबर रिच प्रोटीन का बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स है ब्लैक राइस। ओके मैम। हाँ मैम, मैंने मैंने देखा है, मैंने ये सुना भी है कि आयरन और प्रोटीन के लिए ब्लैक राइस जो है नॉर्मल राइस के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू एंड आरडीए इवन काफी ज्यादा है। And even because of its color, I can say it's dark purplish color. तो यस उसका मैम। जो कलर का इफेक्ट है दैट इज रिच इन एंथोसियानिन, दैट इज अ गुड एंटीऑक्सीडेंट ओके मैम। जो आपकी बॉडी को हेल्प करता है ओवरऑल। इट्स अ काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली, हाँ। एंथोसियानिन। सो हाँ। हाँ। आई कैन से इट्स गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड एज वेल एज फॉर द स्किन, बिकॉज जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स दे आर गुड फॉर द स्किन। ओके मैम। तो मैम आज के सेशन में मुझे लगता है कि हमारे जो पूरी इंस्टा फैमिली है उनको डायबिटीज के ऊपर एक इंसाइट मिले होंगे, और काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी कार्ब्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स कार्ब के बारे में। तो मैम एट लास्ट हम चाहते हैं कि आपके थ्रू एक कंक्लूडिंग मैसेज हो, हमारी पूरे जो भी लिसनर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं आज के, उनके लिए कंक्लूडिंग मैसेज हो। और आगे आने वाले समय में तो मैम हम बहुत सारी चीजें प्लान भी कर रहे हैं, एक स्पेशल डाइट प्लान का भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम आगे आने वाले समय में डायबिटीज को से फ्रीडम दिलाने के लिए जो भी हम नेचुरली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे वो एक डाइट के फॉर्मेट में हो। अच्छा मैम, लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज क्या रोल प्ले कर सकता है डायबिटीज में? अगर इस पे भी आप थोड़ा सा रिकमेंड कर पाए कि क्या एक्सरसाइज हमें इंक्लूड करनी करनी चाहिए, और या कितना मिनट हमें हमारी एक्सरसाइज में भी देना चाहिए अलॉन्ग विद डाइट? क्योंकि कहीं ना कहीं बोला जाता है कि सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जब होता है तभी डिसीजेस क्योर होती हैं। तो मैं मैम, अगर आपके इसके ऊपर भी व्यू हमें मिले। तो टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज, सिर्फ डायबिटीज के लिए एक्सरसाइज जरूरी नहीं है, इवन ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एवरी डिजीज नीड द गुड वर्कआउट। और हम्म। वर्कआउट सिर्फ जरूरी नहीं है कि हमें जिम जाके ही वर्कआउट करना है, यू कैन डू ओके। वर्कआउट एट योर होम ऑल्सो। यस सिंपली मैम। जस्ट आई कैन से कि अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक ही कर रहे हो दैट इज ऑल्सो सफिशियंट, अगर आप रेगुलर लाइफस्टाइल की बात कर रहे हो। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द डायबिटीज इज दैट कि अगर हम डायबिटीज को क्योर करना चाहते हैं तो देयर इज आई कैन से कि बहुत पुरानी एक टेक्निक है कि लोग पुराने टाइम पे जिनको लोगों को डायबिटीज होता था, या आज के टाइम पे भी जिन लोगों को डायबिटीज है, स्पेशली जो एज्ड पीपल है, दे हाँ। हाँ। यूज टू वॉक ऑन द ग्रास अच्छा। इन द हाँ। मॉर्निंग। हाँ। हाँ। मतलब विदाउट स्लीपर्स दे यूज टू डू हाँ। द हाँ। वॉक। दैट इज वेरी गुड बिकॉज वो डायरेक्टली हमारी बॉडी जो है वो नेचर के साथ कनेक्ट हो रही है, एंड जितना ओके। हम लोग नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतनी ही हमारी हीलिंग प्रोसेस इंक्रीज होगा। हाँ। हाँ। सो हाँ। आई walk on the grass naked feet, and best is कि आप morning walk करो, jogging if you are able to do jogging or cardio workout, or definitely the strength training, though nothing can compete that thing. सो बेसिकली वर्कआउट होना चाहिए, जिस मर्जी फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपके पास वर्कआउट का टाइम नहीं भी है तो एटलीस्ट यू कैन डू वॉक। और वॉक ये जरूरी नहीं है कि आपको रेगुलर बेसिस पे सीधा 50 मिनट्स निकाल के ही वॉक करनी है। सिंपली व्हाट हाँ। यू हाँ। कैन डू इज कि आप मील के बाद 10 मिनट सुबह लगाओ, 10 मिनट खाना, हर मील के बाद एटलीस्ट यू कैन डू फॉर 10 मिनट्स ऑफ वॉक। सो हाँ। आई कैन से कि हाँ। आप स्प्लिट करके भी अपनी वर्कआउट को कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन नॉट डू वर्कआउट, इट्स काइंड ऑफ एक्सक्यूज ओनली। हाँ। हाँ। हम्म। हाँ, तो कहीं ना कहीं जितनी भी हमारी मील्स है, जैसे आपने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि हर मील के बाद हम 10 मिनट्स का एक वर्कआउट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जनरली इंडियन हैबिट होती है कि मील लेने के बाद दे लाई डाउन ऑन द बेड, दे गो फॉर स्लीप, या फिर वो मील के बाद का जो एक्सरसाइज है वो जनरली लोग नहीं करते हैं।
तो मैम हम्म एट लास्ट आई रियली वांट टू थैंक यू, और अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें हमारी पूरी इंस्टा फैमिली को। वैसे तो आज के सेशन में मुझे लगता है कि काफी अच्छी वैल्यू लोगों के पास में ऐड ऑन हुई होगी, काफी सारी बातें उनको पता चली होंगी, कुछ बातों का रिवीजन उनको हुआ होगा। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि वी आर वर्किंग अपॉन डाइट प्लान्स ऑल्सो, हम डाइट प्लान के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और आगे आने वाले कुछ महीनों में हमारी पूरी कोशिश है कि हम जिस भी फॉर्मेट में जो मेजर हेल्थ डिसीजेस बन चुकी हैं, जैसे बोला जाता है ना कि हाइड्रा प्लांट होता है, आप उसका एक पार्ट दबाओ तो दूसरा पार्ट ग्रो करने लगता है। तो ऐसे ही कई सारी डिसीज है, कोई डायबिटीज के लिए क्योर कर रहा है तो हाइपरटेंशन ग्रो कर रही है, हाइपरटेंशन कंट्रोल कर रहा है, ओबेसिटी ग्रो कर रही है। तो हमारी पूरी कोशिश yes, है पूरी विंध्यरा की विद द हेल्प ऑफ फूड सप्लीमेंट्स, और आगे आने वाले समय में विद द डाइट्स एंड विद द कंप्लीट एक्सरसाइज प्लान हम लोगों को हेल्प कर पाए कि वो अपनी इन डिसीजेस को मिनिमाइज कर पाए या इनसे फ्रीडम पा पाए। तो मैं चाहता था कि एक बार लास्ट कंक्लूडिंग मैसेज आपकी तरफ से हो हमारी पूरी इंस्टा फैमिली को। यस मैम। See, first of all, it's a message for every person, either he's diabetic or not. Your lifestyle management is much important thing. आप अपने lifestyle को manage करो, सुबह उठ के प्राणायाम करो. That is very like natural thing and very important thing. Secondly, you should include good amount of water in your diet. Hydration is ओके। very important for every disease management. And secondly, plate को balance करना सीखो. You have to like eat more protein, more fiber rather than focusing on the carbs. So you have to eat less roti but more protein and more salads. That is the best thing to combine for all the diseases. And fats पे focus करो, healthy fats लो. This is totally the myth कि fat नहीं खाना है. You have to eat the fat but in the healthy form. जैसे बात हुई थी sea buckthorn की, so that is also rich in the omega-7 fatty acid. So that is very यस good for overall health. So we can also take that for like competing with our daily requirements of good amount of fatty acids. And workout is important, diet is important, and lifestyle is important. So that's it. ओके मैम, और आई थिंक सो हमारी पूरी इंस्टा फैमिली के थ्रू वी लव टू थैंक्स शीनम मैम कि आपने अपना क्रूशियल टाइम हमें दिया, एंड होपफुली हम आगे आने वाले समय में फिर से दोबारा बहुत सारी नॉलेज लेके, बहुत सारे इंसाइट्स लेके और भी हम दोबारा इंस्टा पे कनेक्ट होंगे। एंड मैम आई थिंक सो इन द फ्यूचर यू विल रियली हेल्प अस कि हम एक अच्छा डाइट प्लान और प्लान कर पाए और लोगों को इन सारी हेल्थ इश्यूज से बाहर आने के लिए। तो एट लास्ट वी विल लव टू थैंक्स मैम, हम आपको थैंक्स करना चाहते हैं, एंड वेरी सून वी विल बी इनवाइटिंग यू इन अनदर टॉक शो, और दोबारा से हम आपको इनवाइट करेंगे। और आई थिंक सो चैट बॉक्स में हम बहुत सारे थैंक्स मैसेजेस देख पा रहे हैं मैम आपके लिए। So we'll love to hear you out again, and thanks for all the valuable knowledge and insights that you have given, ma'am, today. Okay, ma'am. So much. I'm really obliged from your response and as well as a response from the audience as well. So hoping to connect with you people again. So next time कुछ अच्छा टॉपिक और लेके आएंगे, and I hope कि आपको जो overall knowledge मैंने दी है help करी हो, and overall the things will really go well in the future Yes, as well. ma'am. Yes, ma'am. So at last, again, I will love to thank Sheena, ma'am, and I will love to thanks all our entire audience for being there with us, for giving the valuable time, and for being there with us, and for for showing such a excitement out in the chat box. So again, again, I will love to thank ma'am and all the audience, and we will meet back soon in another event. आने वाले समय में हम दोबारा मैम से मिलेंगे एक अगले इवेंट में। Thank you, ma'am, and thank you to our entire Insta Thank you fam. so much. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Bye bye.